શકતા નથી અને સડનલી આપણને ક્યારેક ખબર પડે કે લે હવે નથી અને આપણને ખબર પડે. આજે એમને કલેક્ટર તરીકે આપણે ઉપર નથી બોલાવ્યા, આજે એમને ડૉક્ટર મનીષભાઈ તરીકે એટલા માટે આમંત્રિત કરવા છે. એમણે એમના આઈડીમાં ઝોરબા ધ બુદ્ધા એવું લખ્યું છે. ઝોરબા આપણું પાત્ર નથી, ગ્રીક ફિલોસોફીનું પાત્ર છે. અને ભારતીય કે સનાતન ધારામાં તમારે જો કહેવું હોય તો આપણે ખાઈ પીને જલસા કરો, દેવું કરીને ઘી પીવું, એ જે વિચારધારા હતી એ ઝોરબાની પરંપરા છે. પછી આચાર્ય રજનીશે એ વાતને થોડી ખુલ્લી મૂકી અને એવું કીધું કે માત્ર ખાઈ પીને જલસા તો કરવા જ જોઈએ, પણ સાથે સાથે તમારી અંદર બુદ્ધનું મન હોવું જોઈએ કે જે તમને સભાન કરે કે તમે શું ખાવ છો, શું પહેરો છો, કેવી રીતે કોન્શિયસ કરો છો. એટલે એમનું એક વાક્ય છે કે ઝોરબા વગર બુદ્ધા અધૂરા છે અને બુદ્ધા વગર ઝોરબા અધૂરા છે. અત્યારે આપણે ક્યાંક સૌ જોઈએ ને તો કાં આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ છીએ અને કાં આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ નથી, બે જ ભાગ છે. ત્યારે રજનીશનું કહેવું હતું કે બે ભાગની વચ્ચેની કડી છે, એમાં આપણે સૌએ જીવવાનું છે. અને જે આપણી વચ્ચેની વ્યક્તિ આ બે વચ્ચેની કડી વચ્ચે ઝોરબા ધ બુદ્ધાની લાઈફસ્ટાઈલમાં જીવે છે, જેણે આ પુસ્તક ગૂગલમાંથી સર્ચ કરીને કે ચેટ જીપીટીને પૂછીને નહીં, પણ રાતના ઉજાગરાઓ કરીને અનેક સફળતા પછી પણ નિષ્ફળતા અનુભવીને પોતાની આજુબાજુ રહેતી વ્યક્તિની પીડાને સમજીને જેણે આ પુસ્તક લખ્યું છે. અને ક્ષણે ક્ષણ 24 કલાકમાં એ 2 મિનિટ માટે રડ્યા છે, 3 મિનિટ માટે હસ્યા છે, 48 વાર જેને ઊંઘ આવ્યા વગર પડખું ફેરવ્યા છે, એની આ એક કથા છે. તો આવો એવા લેખકને અહીં બોલાવી અને કહીએ કે એમની થોડી વાત અને યાત્રા કરે, જેથી કરીને કદાચ બની શકે કોઈ પીપળા નીચે આપણે પણ બેઠા હોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે આ યાત્રાનું પરબ આપણને સૌને ક્યાંથી મળવાનું છે. ડૉક્ટર મનીષ બંસલ સાહેબને વિનંતી છે કે તેઓ આવે. ડૉક્ટર નિમિત ઓઝા, જેનો પરિચય હું ભાવનગરમાં કરાવું તો મને કોઈ કેવું કે આ બેન કંઈક ઓળખતા નથી લાગતા, ભાવનગરમાં રહેતા નહીં હોય. નિમિતભાઈ માટે હું હંમેશા એક વાક્ય કહું છું, पे जैसे चमकीले होते हैं, डिप्रेशन भले ही काला हो। मतलब डिप्रेशन खुद सुंदर नहीं है, लेकिन उसके पीछे का कारण बहुत सुंदर होता है. आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भादरा तहसील में गांव है नुआ नाम से, वहां से बिलोंग करता हूं. और हमारे परचूरन जो किराने की दुकान है वो पिताजी किया करते थे. छोटा मोटा गांव के अंदर बिजनेस था, गांव के हिसाब से मीन्स की ठीक ठाक आमदनी जिसको बोल सकते हैं वो थी. पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि माहौल नहीं था. और गांव के ही स्कूल में मैं जैसे 8th किया, फिर गांव में नहीं था तो बाजू के स्कूल में, वो 6 किलोमीटर दूर था तो हम जाया करते थे. 9th और 10th वहाँ से किया. उसके बाद DAV स्कूल गंगानगर से 11th 12th, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ये UPSC, और फिर यही मीन्स की जर्नी चली. गांव काफ़ी समय के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि बैकवर्ड था. और जब मैं 9th क्लास में था तब वहाँ पे मीन्स की लाइट आई थी. उससे पहले हम जो लेंथ के या मोमबत्ती या जो चीज़ होती है उसमें ही पढ़ा करते थे. और जब 10th में था तब रोड आई थी. तो उससे पहले हम जो गांव की कच्ची सड़क थी वहाँ से एक बस जाया करती, तो उसमें ही बैठ के स्कूल मीन्स के जाया करते थे. मैंने लिखा भी है स्कूल बस. तो वो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा भी स्कूल बस में यहाँ पे स्कूल बस नहीं है जो कि सुबह बच्चों को लेने आती है, बल्कि ये था कि कच्चे टीलों में जब वो बस के टायर फंसते थे तो हम 10 स्टूडेंट जो उस गांव से मीन्स की दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते थे तो वो हमें उतारते थे कि तुम लोग इसके टायर के आगे से रेत निकालोगे ताकि मीन्स की बस आगे चल सके, यही तुम्हारा किराया है. લખી છે અને જ્યારે હું આની સાથે બહુ અનુબંધ રચી શકું છું, કારણ કે જ્યારે તમે લખો છો ને ત્યારે યુ આર કમ્પ્લીટલી નેકેડ ઇમોશનલી. ત્યારે તમે કલેક્ટર નથી હોતા, તમે ડૉક્ટર નથી હોતા, તમે તમારો એ મૂળ સ્વભાવ છતો થાય છે જે તમે ક્યાંક અંદર ધરબીને બેઠા હતા. તો ઘણા બધા પાના પર જે તમે લખ્યું કે એક તબક્કે કલેક્ટર બનવાનો નિર્ણય જે છે
એ જે મૂર્ખ પરિબળો જવાબદાર હતા, મૂર્ખ કારણ જવાબદાર હતા, કે મૂર્ખતા હતી કે હું લાલ પીળી બત્તીઓથી અંજાઈને, કે બીકોઝ મારા પ્રિન્સિપલ કલેક્ટરને પગે લાગ્યા એટલે મને એમ લાગ્યું કે આ નાના છે ને આ મોટા છે. તો એ બહુ પ્રામાણિકતાથી એમણે લખ્યું છે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે ડિપ્રેશનની વાત દ્વારા લોકોને મદદ કરવાની જે આમાં ભાવના રહેલી છે, એનો ખ્યાલ તમને કઈ રીતે આવ્યો અને ક્યારે તમને એવું લાગ્યું કે તમે તો રિકવર થઈ ગયા છો, બટ ઇટ ઇઝ હાઈ ટાઈમ કે તમારે આના વિશે લખવું જોઈએ જેથી કરીને લોકોને આમાંથી કંઈક જડે? એમાં નિમિતભાઈ એવું છે કે જ્યારે તમે જેમ વાત કરી કે MBBS ના સેકન્ડ યરમાં હતો ત્યારે મીન્સ કે ડિપ્રેશનનો નાનો અટેક શરૂ થયો, અને પછી જેમ દરેક ડિપ્રેશનના લોકો ડિપ્રેશનના માણસ કરે છે કે ભાઈ છુપાવે છે એને, કે મારા જે સાથી છે એને ખબર નહીં પડવી જોઈએ, મારા જે ઘરવાળા છે આ દુઃખી થઈ જશે, અથવા તો મારા જે ટીચર છે એને ખબર નહીં પડવી જોઈએ વગેરે વગેરે. તો એક મારો મિત્ર હતો, તે વખતે જોધપુરમાંથી MBBS કરતો હતો. હું એની સાથે વાત કરી કે ભાઈ આ ઇશ્યુ છે, તો પછી આ કીધું કે ભાઈ હું તમને એટલે કે ડૉક્ટર સાથે આપણે વાત કરીએ. તો પછી હું એને ના પાડી દીધી કે નહીં, હું જ્યારે બિકાનેરમાંથી કરતો હતો કે ભાઈ અહીંયાથી તો નહીં. પછી ધીમે ધીમે આ ડૉક્ટરની દવા પણ ચાલી. થોડુંક જે ડિપ્રેશનના મરીઝ ગલતી કરે છે કે ભાઈ જ્યારે સિમ્પટમ્સ ઓછા થઈ જાય છે ત્યારે પોતે આપમેળે દવા બંધ પણ કરી દે છે, પોતે થોડાક ડિપ્રેશનના લક્ષણ વધી જાય તો પોતે આપમેળે ડિપ્રેશનની ડોઝ વધારી નાખે છે વગેરે વગેરે. અને પછી UPSC નો જે તમે વાત કરી એનો ચસ્કો લાગી ગયો. પછી વાંચવા માંડ્યા. સિલેક્શન પણ 2010માં IRSમાં થઈ ગયો. પણ IRSમાં જ્યારે ગયા તો એવું લાગતો હતો કે ભાઈ કાંઈક ખૂટે છે, અને પછી એવું વિચાર્યું કે ભાઈ IRS मैन बाद में है लेकिन एक सिंगर पहले है, डॉक्टर बाद में है लेकिन राइटर पहले है. तो ऐसे करके यार ये तो चीज जिसकी शायद भगवान ने सोच समझ के भावनगर भेजा होगा मुझे. तो સર, આ છે ને આત્માનું શહેર છે. हाँ, તો અહીંયા જે નથી લખતા એ પણ લખવા માંડે છે, જે નથી ગાતા એ પણ ગાવા માંડે છે. गावा मंडल. બાકીના વિવેચકો છે અમારા ગામમાં. ગાય ઓછી ને ગાયકો વધારે. तो इसीलिए वहां पे मतलब फिर ये भावनगर आए, फिर इसको थोड़ा प्रूफ रीडिंग किया और फिर मैं किया अब इसमें ज्यादा सुधार उधार की जो भी संभावना है वो तो अनंत रहती है, अब इसको छाप देते हैं. और फिर छापा, फिर आप जैसे यार दोस्तों को पढ़ने के लिए दिया तो उनको पसंद आया. कुल मिला के मेडिकल का बैकग्राउंड एंड स्पिरिचुअलिटी का जो पर्सनल एक्सपीरियंस एंड थोड़ा MBBS एंड UPSC की वजह से ऐसा रहता है कि भी आप जो बोलते हो वो थोड़ा ऑथेंटिक हो जाएगा. तो इसके हिसाब से अगर ये चीज किसी के काम आए तो उस एंगल से फिर मैंने इस पे लिखा था एंड नाउ लाइक वेरी गुड रिस्पॉन्स. सर, एक क्वेश्चन. एक जगह पे आपने लिखा है कि आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम था आपका, और फिर आपको ऐसा लगा कि सडनली आपको यू आर नॉट मेड फॉर मेडिकल फील्ड, आप नहीं बने, आपको MBBS नहीं करना है. वैसे 90% मेडिकल्स को यही लगता है MBBS होने के बाद भी कि मुझे नहीं करना है. तो और फिर आपने बोला कि आपकी बुक्स चेंज हो गई, फिर सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए आप MBBS किया और फिर आपने UPSC की प्रिपरेशन की. तो वो क्या मोमेंट था कि जब आपको लगा कि अभी मेरा आई एम नॉट मेड फॉर दिस मेडिकल फील्ड, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आपका विजन क्लियर हुआ? तो व्हाट वाज दैट पॉइंट? नहीं, इसमें निमित भाई विजन तो क्लियर नहीं हुआ था. जैसे कि नेहल भाई ने बोला कि एक दिन हमारे मेडिकल कॉलेज में कलेक्टर साहब आए, आलोक गुप्ता बीकानेर के कलेक्टर थे, इसकी वेरी यंग 25, 26, 27 साल के लगभग होंगे. सो वो आए. पहले मैं नहीं जानता था कि कलेक्टर क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है, SDM क्या होता है वगैरह वगैरह. तो वो आए तो हमारे प्रिंसिपल साहब उनके आगे पीछे घूम रहे थे. तो मैंने मतलब पास साथ वाले साथियों से पूछा मैं कि ये आदमी कौन है, तो कि ये बीकानेर का कलेक्टर है. तो मैं क्या, मुझे तो ये बताया गया था कि MBBS सबसे बड़ा एग्जाम होता है या नीट सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो ये क्या करके आया है, मतलब ये कोई राजनेता है या कोई क्या चीज है ये. तो फिर थोड़ा जो मीन्स की जिनका एक्सपोजर था उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है. तो बस उससे ऐसा हो गया कि जो प्रिंसिपल साहब हमें अपने चैम्बर से मतलब 100 मीटर दूर रखते हैं और जो पास में भटकने भी नहीं देते, वो इनके सामने झुक झुक के कि साहब आप अंदर आइए, चाय पीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए. तो मैं क्या, बनना तो ये है. अगर उस टाइम आप किसी पॉलिटिशियन को देखते तो आज भी ना बात बोलते. तो शायद कल जो गुजरात में इसके जो कल कैबिनेट है तो शायद उसमें बैठा होता. मैं क्या, लेकिन वो एक संयोग की बात और रास्ते की बात और मीन्स की चीजें कैसे टाल लेती है और कुछ है ना. मेरे ये समझ आ गया कि भाई सब कुछ लिखा हुआ है,
एंड हम निमित्त मात्र बोल सकते हैं या उस प्रकार से ना, तो वैसा है। तो शायद आलोक गुप्ता सर को आना था और उस दिन मुझे भी कॉलेज जाना था, अदरवाइज कौन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में कौन मीन्स की रेगुलर जाता है, ये भी है ना। तो उस दिन वो आए, देखा, और ऐसा कि नहीं, कारण ये एक वैसे देखा जाए तो कोई सॉलिड कारण नहीं है अभी किसी को देख के और जस्ट कि वो प्रिंसिपल के सामने झुक रहे हैं तो कि प्रिंसिपल छोटे हो गए और कलेक्टर बड़ा हो गया, वो चीज नहीं होना चाहिए आइडियली। बट एक वो ट्रिगरिंग फैक्टर ऐसा रहा कि नहीं यार बनना तो अब ये है, एंड उसके बाद फिर बुक्स चेंज होना एंड एवरीथिंग। और फिर जैसे नॉर्मल मेडिको होता है वो गर्ल्स हॉस्टल के सामने चक्कर काटता है, आप कलेक्टर बंगलो में चक्कर काट रहे हैं। नहीं, कलेक्टर बंगलो का रास्ता गर्ल्स हॉस्टल के सामने से ही मीन्स की निकलता है। वहां से आपको ऋचा जी मिली है। हाँ, वहीं से ऋचा मिली है, यस। लेकिन ऋचा की बात मीन्स की करेंगे तो रात निकल जाएगी। बट ऋचा और मेरा मीन्स की ज्यादा मेडिकल कॉलेज में मैं किसी और के पीछे था। अच्छा, आप ऑनेस्ट है वो तो दिख ही रहा है। बिल्कुल। और भयंकर ऐसे पागलपन की हद तक जिसको बोल सकते हैं उस हद तक था, और हमारी 50% बात भी बन चुकी थी। यानी कि मेरी 50% था, उसकी तरफ से 0 था। तो बात 50% तक पहुंची थी, कभी पहुंच ही नहीं पाई, और हम पागलों की तरह जिनकी बिना सिर पैर के आशिक टाइप से ऐसे होते हैं ना कि भाई चलो। लेकिन फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और एक छोटा सा मतलब ऐसे कोई कारण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सबकॉन्शियसली शायद ये भी चीज थी कि शायद मैं डॉक्टर हूं तो ये ना माने, लेकिन मैं आईएएस बन जाऊंगा तो क्या पता मान भी जाए। तो ऋचा ने आपको बचा लिया। हाँ बिल्कुल, ऋचा ने बता दिया। इसका मैंने बुक में भी जिक्र किया है कि ऋचा का जो मतलब ऋचा से शादी करने का जो डिसीजन था वो मैंने होशो हवास में नहीं लिया था। उस वक्त निमित भाई क्या है कि मेरा एक आफ्टर यूपीएससी 2010 में आईआरएस में सिलेक्शन के बाद एक छोटा सा सर्जरी जैसे मेरा हुआ था। तो उस वक्त आई वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थेसिया, और एनेस्थेसिया में क्या रहता है कि आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता और सबकॉन्शियस चीजें बाहर आती है। तो उस वक्त मैं नींद में मीन्स की अर्ध जागृत अवस्था में जिसको बोल सकते हैं, और उस वक्त की माँ जैसे बैठे हैं उनको, एक हमारे मामा जी के जो लड़के हैं उनको कि भाई साहब लड़की तो मतलब ऋचा ही ठीक है, वो बढ़िया है, उसी से शादी करेंगे। बाकी उस वक्त जैसे जैसे होता है ना कि यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद रिश्ते आने लगते हैं कि हम इतना पैसा लगा देंगे, हम ये कर देंगे, ये लड़की है फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट की है, ये लड़की उसकी है, वगैरह वगैरह। सो अर्ध जागृत मन की वजह से शायद मेरी वो कैलकुलेशन उस वक्त खत्म हो गई थी। और मैंने बुक में ये लिखा है कि जो वो निर्णय था उस वक्त मेरी गणित, मेरा कैलकुलेशन, मेरी मैथमेटिक्स की भाई क्या अच्छा रहेगा और क्या नहीं रहेगा, और किस में पैसा है और कौन मेरे काम आ सकता है और कौन नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें खत्म हो गई, और जो ईश्वर का एक निर्णय था, जो एक नेचर का निर्णय था, जो कुदरत का निर्णय था, उसके हिसाब से ऋचा से मैरिज हुई, और आई एम लाइक मोर देन सेटिस्फाइड एंड मोर देन हैप्पी। સર અંડર એનેસ્થેસિયા આપની તો આપણા બધાની પરિસ્થિતિ એવી હોય છે કે આપણને કોઈ ઓળખી ન જાય એટલા માટે આપણે લેયર્સ રાખતા હોઈએ છીએ। એમણે કીધું કે મારા જીવનના બધા ગણિતો કર્યા વગર મેં, અને તમે જીવનના સાચા નિર્ણયો ત્યારે જ લેતા હો છો કે ત્યારે તમે જીવનના બધા જ ગણિતોને બાજુમાં મૂકી માત્ર હૃદયનું સાંભળવાની વાત કરો છો। એ સાચો રસ્તો છે। એટલે તમારું ઝોરબાદ બુદ્ધાની યાત્રામાં ઋચાબેનનું હોવું જરૂરી હતું। સામાન્ય રીતે આપણે બધા એવું માનતા હોઈએ છીએ કે તમારી પાસે કાંઈ ન હોય ને ત્યારે તમને ડિપ્રેશન આવે, તમારો ખાલીપામાંથી આવે। તમે ડોક્ટર હો, આટલી સુંદર પત્ની હોય, સરસ જગ્યાએ તમારું નામ હોય, તમે આઈએએસ હો, આ જગ્યાએ હોય, તેમ છતાં કેમ ડિપ્રેશન આવે? અને આ પુસ્તકની ટેગલાઇનમાં તમે જે લખ્યું છે અને પાછું રેડ લાઇનથી એને આમ ચેકી નાખ્યું છે કે આ નહીં, આ નહીં, આ રહસ્ય કયું છે? નહીં, હું માનું છું કે ડિપ્રેશન અંદરનો જે ખાલીપો છે, અંદરનો જે ખાલીપन છે, આ તો અંદરથી જ ભરાશે। अपने चाहे कितना भी मीन्स की एग्जाम पास कर लें या बाहरी अचीवमेंट्स कितने ही हो, 500 लोग आपको सैल्यूट करने वाले हो, सर बोलने वाले हो, आपसे डरने वाले हो, वोटेवर, लेकिन जब तक मीन्स की आदमी खुद के नेचर के साथ जीना नहीं सीखेगा तब तक उसको एक तृप्ति या एक आनंद नहीं मिलेगा। और एक आदमी ने जब खुद के साथ जैसा भी वो मीन्स की है उसके हिसाब से उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके हिसाब से अगर जीना स्टार्ट कर दिया तो उसको फिर
ना आईएएस की जरूरत है, ना एमबीबीएस की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, ना प्रतिष्ठा की जरूरत है। ये चीजें बाहरी है, और ऐसा नहीं है कि भाई बाहरी चीजें अचीव नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाई अंदर की कीमत पे मीन्स की बाहरी चीजों को प्राप्त करने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। अपने आप को अगर बचाकर, अपने अंदर को बचाकर, खुद को बचाकर अगर हम बाकी बाहरी दुनिया में कुछ भी अचीव करते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन आपने अपने अंदर के मीन्स के बच्चे को खो दिया, आपने अपने अंदर के दिल को पत्थर बना लिया, आपने अपने अंदर की इच्छाएं, आपने अपने अंदर का जो एक आशिक जिसको बोल सकते हैं, या एक मीन्स की मस्ती बोल सकते हैं, उसको अगर बेचकर कुछ भी हासिल किया तो फिर उस हासिल करने का कोई खास मतलब मुझे नहीं लगता। और ये जो बात कर रहे हो ना कि काटने वाला, तो इसमें मैंने लिखा है कि कन्फेशन ऑफ एन आईएएस हु फेल्ड मिजरेबली, एंड फेल्ड को कट किया है और उसमें FELL यानी कि फेल लिखा है, बट रोज मिरेकुलसली कुछ अधूरापन है। फिर जब फाइनली आप आईएएस बन गए, उसके बाद भी आपको लगा कि अभी भी कुछ वैक्यूम है, कुछ एम्प्टीनेस है, वो क्यों थी और वो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? वही चीज है ना कि जैसे जब एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ तो लगा कि अब पूरे हैं, फिर यूपीएससी IRS मिल गया तो अब तो पूरे हैं। और इसका एक शायद ये भी था कि 2010 में जब मेरा IRS में सिलेक्शन हो गया था तो मैंने 2011 का प्रीलिम्स भी दिया था, और 2011 के प्रीलिम्स में मेंस की सिलेक्शन भी हो गया था और मेंस का कॉल भी आया था, लेकिन मैं नहीं गया मेंस देने के लिए कि नहीं भैया IRS से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर धीरे धीरे उस चीज का कि नहीं यार IRS तो नहीं, कुछ और। फिर लगा कि IAS भी मिल गया, लेकिन फिर भी वो एक, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना निमित भाई कि जो खालीपन अंदर का है वो अंदर से ही भरेगा। वो यूपीएससी में आप कोई रैंक लेके आते हो, या फोर्ब्स 500 की लिस्ट में अपना नाम लेके आते हो, या किसी बड़े आर्टिकल, बड़े मैगजीन में आपका आर्टिकल है जो डॉक्टर छपता है, तो उससे अंदर की चीजें नहीं भरती। एक लाइन है कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। तो तरने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। કે ડિગ્નેટરી ઠીક છે, આવી જશે, કોઈ ઇશ્યુ નથી। અને આપણે ઉતરીને અને આમાં કલેક્ટર વલેક્ટરના જે મીન્સ કે જે તમગા છે આ સાઈડમાં મૂકીને અને એકદમ 2-4 પ્લેટ ગાડીને સાઈડમાં નહીં લેવાની, ઓલી વસ્તુને સાઈડમાં લેવાની। હા, આપણી ગાડીને સાઈડમાં કરીને અને લારીવાળા જે ભાઈ છે ને કે ભાઈ કરો તૈયાર, થોડું નમક વધારે અને આ વધારે। તો પછી આ આપણી સ્પિરિચ્યુઅલિટી છે, કારણ કે એમાં જેટલું આનંદ છે, કારણ કે તે उस वक्त वो ही चीज थी कि भाई यही स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से ना तो ये है कि भाई केवल आंख बंद करके बैठना, मेडिटेशन करना ही स्पिरिचुअलिटी, वो भी नहीं है। और आपका कोई भी एक्ट स्पिरिचुअल हो सकता है, मुझे ये लगता है। मतलब इवन आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल हो सकता है, अगर आप पूरे 100% मन से उसमें इन्वॉल्व होके और आपको फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो वो स्पिरिचुअल एक्शन। તું કાઠિયાવાડ સાહેબ એ મારી પાસે સાહેબ એ સ્પિરિટ બીજી હોય છે। તો કાઠિયાવાડમાં જે માવો ઘસી ઘસીને ખાય છે સ્પિરિચુઅલ એક્સરસાઇઝ છે। હા, એ એક્યુપ્રેશરની એક જુદી રીત છે। जैसे बुक में भी लिखी हो सकती है कि जिसको देख के आपके घर वालों का बीपी बढ़ जाए कि आ छोकरो तो तुमने एक बगाड़ी देશે। हाँ, आ छोकरो मतलब इसके पास तो जाना ही नहीं है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। तो वो आप ये मान लीजिए कि कल्याण मित्र की डेफिनेशन में कहीं ना कहीं फिट हो रहा है। सो ये अमित जो था वो मीन्स कि हम स्कूल में मिले थे 11th क्लास में, जब हम दोनों ही बाहर गंगानगर गए थे, स्कूल में हॉस्टल में रहते थे तब वहां पे। और वहां से यानी दृष्टिनो अभाव છે कि અમે લોકો એટલા સક્ષમ નથી કે અમે એટલા સંવેદનશીલ કે સેન્સિટિવ કે એટલી મારી પારખી નજર નથી કે જે તિરાડ છે એને જોઈ શકીએ। और આટલી સરસ વાતનો વિચાર તમને કેવી? और ऋचा मेरे को बोलती भी है कि आपको मेरा दुख या मेरी बात या मेरा नहीं दिखता, मेरा आंसू नहीं दिखता, और कोई और रोती है तो आप मतलब एकदम ऐसे पिघल जाते हो। पर आई वांट કે આ રેકોર્ડ થાય તો જો કલેક્ટરના ઘરે આવવું હોય તો આવો હોય, તમારા ઘરે જ આવો હોય। એમાં શું છે કે औरत जैसे
मैंने ये जो बात लिखी है बुक में, ये मदर माँ के कॉन्टेक्स्ट में लिखी है। भी उन्होंने मीन्स की वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, जो मेरा ननिहाल है, और वो एकदम ठेठ गांव के अंदर उनका मीन्स की शादी हुआ। उसके बाद मेरे फादर है वो भी काफी सीवियर डिप्रेशन में रह चुके हैं, और फैमिली मीन्स की इकोनॉमिकली भी ठीक ठाक थी, सोशली भी ठीक ठाक थी, वगैरह वगैरह। सो उनका स्ट्रगल, उनका संघर्ष, देन पिता की जो डेथ, और उसके बाद उन्होंने जो मीन्स की आई थिंक वो क्लास 3 तक स्कूल गए हैं, उसके बाद मीन्स की वो स्कूल नहीं गए। उनको नहीं पता एमबीबीएस क्या होती है, कि यूपीएससी क्या रहती है, कि आईएएस क्या होती है, लेकिन जो जो मैं बोलता गया वो मानते गए, और जहां से भी जो भी व्यवस्था हो सकी पैसे की मांग कर, भाई से मांग कर, इससे उससे करके, सो उसके हिसाब से मैंने लिखा कि यार इतना संघर्ष या इतना मीन्स की एक पुरुष नहीं कर सकता। एक औरत के अंदर मीन्स की पता नहीं ईश्वर ने कौन सी मिट्टी से उसको बनाया है कि उसके अंदर, जैसे मैंने लिखा है कि दरार नहीं पड़ती, और या शायद अगर दरार पड़ती है तो हम लोगों को दिखती नहीं है। सो दरार तो शायद वो भी इंसान है, वो भी मीन्स की कमजोरियां उसकी भी होगी, और दरार पड़ती भी होगी, लेकिन शायद हमें नहीं दिखती। लेकिन खास बात उसकी ये भी है कि वो उस दरार के साथ हंसते हंसते जी भी सकती है, और आपको भी जिंदा रख सकती है। तो ये केवल, मुझे नहीं लगता कि केवल मेरी माँ की बात है, ये यहाँ पे जितनी भी माँ बैठी है, जितनी बहनें बैठी है, जितनी भाभियां, मतलब जितनी भी औरतें बैठी है, उनके लिए ये चीज लागू होती है कि कुछ तो उसके अंदर खास बात। और माँ के लिए एक लाइन कि वो कुछ इस तरह से मेरे गुनाहों को धो देती है, कि वो कुछ इस तरह से मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। तो भगवान ने तारे की जिम्मेदारी એટલે કે हस्बैंड अगर है तो उसको क्या करना है, कितना करना है, और उसको बच्चों को वो माँ के दिखेंगे, उसमें दिखेंगे, निश्चित रूप से दिखेंगे। એટલે અમારે ધારો કે અમે ઘરે કહીએ ને મમ્મીને કે મજા નથી આવતી, અથવા કોઈ બાળક એવું કહે કે અમને ડિપ્રેશન જેવું ફીલ થાય, તો અમને તમાચાવાળી થાય। તમારે ક્યારે આવું થયું છે કે તમે કીધું હોય ઘરે કે મને, કે મા માટે તો કેટલું પીડાદાયક? એમણે કહ્યું જ નથી, હું ત્યાં જ આવવાનો હતો કે એમણે એક જગ્યાએ મને બહુ ભાવુક ક્ષણ હતી કે જે પેજ પર તમે લખ્યું છે કે તમારા પિતાના અવસાનના સમાચાર, તમારી એક્ઝામ હતી ને તમને મળે, અને એવું કહ્યું કે બીમાર છે, અને તમને રસ્તામાં ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આ બીમાર નથી, હી મસ્ટ બી નો મોર, કારણ કે બીમાર હોય તો બોલાવે નહીં એમ. અને તમે એવું લખ્યું છે કે હું એક ક્ષણ પણ રડ્યો નથી, કારણ કે ત્યારે ઓલરેડી તમે ડિપ્રેશનમાં હતા અને તમે ઇમોશનલી નમ્બ હતા, અને પછી તમે તમારા મમ્મી સાથે એક રૂમ રાખીને રહેતા હતા, પણ તમે તમારા મમ્મીને વાત ન કરી કે હું પણ ડિપ્રેશનનો શિકાર છું, કારણ કે તમને એવું હતું કે પપ્પા તો હતા જ, પિતાજી તો હતા જ, તો મમ્મીને એવું ના લાગે કે આ બાપ દીકરા મારી જિંદગી આખી ડિપ્રેશનના લોકો સાથે गुजरवानी चाहिए, मतलब ये नहीं लागू જોઈએ। तो इसलिए मैंने माँ के साथ, लेकिन ऋचा को मैं कई बार, मतलब डिप्रेशन का तो नहीं, लेकिन ऐसे जैसे मीन्स की ऑफिस में पूरा दिन काम करने के बाद नेचुरल सी बात है कि थोड़ा मेंटल एग्जॉशन वगैरह वगैरह। सो मैं जब भी रात को 9-10 बजे ऐसे आंख बंद करके जब भी सोने की कोशिश करता हूँ कि भाई अब तो नींद आ रही है, या आज तो थक गए हैं, या आज तो ऐसे, तो कि आपका तो ये रोज का है, ये हर कोई आदमी, ये हर कोई मेल सुनता, आपका तो ये रोज का ही है, मीन्स की थक गए हो, हमारे लिए तो आपको टाइम नहीं है, पूरे जिले में आप काम करते रहते हो, आप इसका भला कर दिया, उसका भला कर दिया, हमारा भला कब करोगे? तो घर पे मैंने कभी ये शेयर नहीं किया कि मीन्स की ऐसी चीज है, शायद वो समझ तो पाता है, लेकिन फिर एक और दूसरा चीज की मैं ये मानता हूँ कि दिस इज माय मिस्टेक, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भी अच्छी बात है। इस किताब का, इसका पर्पस यही है कि भी आप बताओ, सही मेन चीज वो है कि आपको किसी भी प्रकार का स्टिग्मा रखने की, किसी भी प्रकार का मीन्स की ये सोचने की सामने वाला क्या सोचेगा और उससे क्या फर्क पड़ेगा, और मेरे जो क्लासमेट है वो क्या सोचेंगे, या मेरे जो दोस्त है वो क्या सोचेंगे, या डॉक्टर क्या सोचेगा, या समाज क्या सोचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। किसी को वो एक लाइन आती है ना, अगर ये भी हम सोचें कि भाई वो क्या सोचेगा तो फिर वो क्या सोचेगा, तो फिर वो अपने दिमाग में रखना चाहिए कि भाई वो जो सोचे वो सोचे, अपने भैया ये तकलीफ चल रही है तो चल रही है टाइप से। सो इस किताब का बेसिक मेरा पर्पस भी यही है कि भाई एकदम खुल के सामने आके बताने का, इसमें किसी भी प्रकार फैमिली भी ये चीज समझती है, और धीरे धीरे उनको भी समझ आ जाता है कि ठीक है ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके की कंसल्ट करने से या उस प्रकार से ये दूर हो जाएगी। तो शेयर करना, बताना,
नियर एंड डियर को, मदर हो, फादर हो, भाई हो, दोस्त हो, डॉक्टर, तो उनको बताना जरूरी है और इस किताब का पर्पस भी वही है।